Jai Shri Krishna, everybody. A very good morning and a Jai Shri Krishna to one and all present here. Sanata Sanandana Sanatana Sanata Kumar Chakra Sudarshan Hai Ratwala Krishnaya Vasudevaya Har He Paramatmane Pranay Shubhakaryay Namo Namaha. Yes, indeed, my dear students, we are very blessed to have this day and witnessing the spiritual awakening amongst us. Saraswati Mata is the body and enlightenment guru for art, culture and music. She enables us to give us strength. Today, we seek the prayer. Kindly request you to close your eyes. Karu binti jaukar dori, araz suno Radha Swami Mori, araz suno Radha Swami Mori. Absolutely. The form of Shakti in various deities we can see in Saraswati, Ma Kali and Ma Lakshmi. We bow to this deity for strength. Moving on with the next. We are very fortunate to have this event of Raj Yoga meditation event amongst us today. Raj Yoga is a meditation technique developed by Prajapita Brahma Kumaris, which aims to bring about physical, mental and spiritual well-being. The technique involves specific breathtaking exercise, pranayams and meditation practices to calm the mind and to connect with the inner self. As Bhagavad Gita states, yoga is the journey of the self through the self to the self. So, today we are going to experience the techniques of this beautiful form with our guests today. Moving on with the next. We are very fortunate to have the chief guest and the speaker for today's function is Dr. Sudha Kangriya ma'am. Is a well-known ophthalmologist alongside her husband of Prakash Kangriya, who is also an accomplished ophthalmologist. Dr. Sudha Kangriya ma'am has dedicated her life to various social causes, including gender equality, girls' education, and many other social causes. She has recently received the prestigious Helen Keller Award for her outstanding work in these areas. Nominated for this prestigious award, ma'am is also a renowned personality amongst us. The first proto-organized for Save Girl Child Mission in India since 1985, and ma'am is a chief member for the same. Ma'am is also nominated for the world's highest international Nobel Peace Award. Sudha Kangriya ma'am is a person with reading of unwanted girls of 8 and wove to the Save Girl Child in wedding ceremony. This though was the first introduced by Dr. ma'am and widely implemented in the society. More than 1,200 remaining and unwanted girls and more than 11,000 weddings with the 8th wove have been performed under ma'am's guidance. Under the leadership of ma'am, the collective pledge of Save Girl Child was taken more than 30 lakh individuals. Dr. Sudha Kangriya ma'am is practicing Raj Yoga meditation lifestyle since 12 years, providing free health service to more than 9,000 COVID-affected individuals and successfully implementation of special camps for the mental peace and blind people and prisons in the jail. President of India, Honorable Dr. Abdul Kalam and Honorable Pratibha Dai Patil honored Dr. Sudha Kangriya for her outstanding contribution to these fields. Special recognition at the International Peace Conference, more than 150 national and international award recipient is ma'am. It is a matter of great honor that a postal ticket of Dr. Sudha Kangriya ma'am has also been published. Established India's first Rotary Peace Center, ma'am is the witness and pioneer. We are very blessed to have such esteemed personality amongst us to address us on this auspicious eve.
So, to present a token of love and gratitude from our school, I request Shri Mohanlal Mandana sir to please honor Dr. Sudha Kampriya ma'am and welcome her. I also request ma'am to please accept the honor. Kindly give a round of applause. Practicing of yoga, union and individual consciousness with that of universal consciousness is of great importance. And such is an esteemed personality who follows these words at a higher extent. We are very pleased to have a Rotarian, Madhav Deshmukh sir, and the president of the Rotary Club of Ahmednagar amongst us. It is my great pleasure to introduce the president of the Rotary Club of Ahmednagar and Rotarian Madhav Deshmukh sir. With his leadership and vision, this club has achieved numerous successes and made a positive impact in our society. Under his guidance, the society has been able to see the most activities along with supporting various charitable initiatives and educational programs and community development programs. We are very blessed to have you, sir, amongst us. So to present a token of love and gratitude, I request Shri Mohanlal Mandana sir to please present a token of love and gratitude to Madhav sir. The Secretary of the Rotary Club of Ahmednagar, Rotarian Deepak Gujarati sir. We are highly pleased to also have the President and elect of Rotary Club of Ahmednagar, Nitin Thade sir. Deshmukh ma'am, a prestigious mama from the Vice President of the school, Mr. Shri Mohanlal Mandana sir. Ramakrishna Education Foundation के श्री मानदना सर, रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर के अध्यक्ष आदरणीय देशमुख सर, पुणे वाले अध्यक्ष आदरणीय ठाणे सर, हमारी बेस्ट फ्रेंड मिसेस देशमुख, इस क्लब के सचिव दीपक भाई, हमारे प्यारे से प्रिंसिपल मैडम, बाकी सभी टीचर्स और मेरे नन्हे मुन्ने छोटे दोस्त, हम स्वयं के लिए तालियां बजाएंगे। इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में आज हम एक नया साइंस का इंट्रोडक्शन करके लेने वाले हैं और वो साइंस है स्पिरिचुअल साइंस। आज तक हम साइंस के अनेक पहलू पर नजर डाली है। ये विशेष साइंस है जिसको स्पिरिचुअल साइंस कहा गया है। इंटरनेशनल योगा डे, ये सुना है आपने कभी? सुना है? अच्छा, हाथ उठाकर जवाब देना कि कौन सा डेट है, कौन सा दिन है जिसको इंटरनेशनल योगा डे की मनाया जाता है। हाथ ऊपर करिए जिनको भी आंसर आता है। अच्छा बोलो बेटा। 21 जून। ओके, दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सबको पता होना चाहिए कि 21 जून ये इंटरनेशनल योगा डे है और उस उपलक्ष्य में क्या किया जाता है। आपको पता होगा कि योगा जो है केवल योगासन नहीं है, तो वो अष्टांग योग है और उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही पार्ट आते हैं। और योगा जो हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। कहा जाता है कि ईश्वर ने दिया हुआ उपहार यानी ये योगा है। ये योगा केवल फिजिकल नहीं है, केवल इमोशनल नहीं है, तो एक स्पिरिचुअल साइंस है और इसकी जानकारी ना केवल हमें तो विश्व में सबको होना चाहिए। इसीलिए ये डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, उससे क्या लाभ है? तो सबसे पहला लाभ है हम फिजिकली फिट होते हैं, हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त होता है। दूसरा, हमारा मन जो है वो प्रफुल्लित होता है, उमंग उत्साह से भर जाता है, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तीसरा, हमारे वातावरण को शुद्ध और खुशनुमा बनाता है और सारे विश्व में मधुर शांति प्रस्थापित करता है। इसीलिए योगा डे सारे विश्व में मनाया जाता है। भारत देश से इसकी शुरुआत हुई है, तो पहला इंटरनेशनल योगा डे कौन से ईयर में मनाया गया? फिर से आपके लिए सवाल है।
इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन पहली बार कौन से ईयर में हुआ है? हाथ ऊपर करके जवाब देना। सर का हाथ ऊपर है, स्टूडेंट्स का। मेरे पास देखिए, मेरे पास। ये पूरे विश्व में सबसे पहला सेलिब्रेशन इंटरनेशनल योग डे का कौन से ईयर में हुआ? अच्छा, सर जी 2014 में डिसीजन हुआ और 2015 में एप्लीकेशन हुआ। सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और तालियां बजाइए, हाथ ऊपर करके भी तालियां बजाइए। और अभी एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कीजिए। अपने राइट साइड में फेस कीजिए और एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करें। देखो कैसी स्माइल आ रही है क्या? अरे स्माइल नहीं आती? अच्छा, इधर बच्चों को स्माइल नहीं आती है? बताइए कैसे स्माइल करते हैं? तो सदा स्माइलिंग फेस होना चाहिए। जैसे टीवी पर चैनल लगाते हैं ना हम, तो रोने वाला पिक्चर आया तो क्या करेंगे? चैनल चेंज करेंगे, क्या रखेंगे उसको? चेंज करेंगे। तो अपने चेहरे पर अगर उदासी हो, नाराजगी हो, तो सामने वाला क्या करेगा? अपने को अवॉइड करके चला जाएगा। तो चेहरे के ऊपर क्या चाहिए? सदा स्माइल चाहिए। बताइए कैसी स्माइल है सभी? लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड सारे बच्चे स्माइलिंग फेस होना चाहिए। है लास्ट में? ओ है। इधर हमारी बेटियां, हाँ वेरी गुड। कैसी फूलों जैसी लग रही है, खिली हुई फूल लग रही है। चलो खुद के लिए तालियां बजाएंगे। तो ये स्पिरिचुअल साइंस है। अभी आज तक हमने सुना है आईक्यू के बारे में, है ना, कि हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं कि हमारा आईक्यू इम्प्रूव हो जाए। हम स्टडी करते हैं, हम एग्जाम देते हैं, लगता है कि हमें बहुत अच्छे परसेंटेज मिल जाए। हम और आगे बढ़ते हैं, अच्छे स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हैं, डिग्री को प्राप्त करते हैं और लगता है कि हमें और भी आगे जाना चाहिए। तो ऐसा हमारा आईक्यू डेवलप होते जाता है। लेकिन एक रिसर्च हुआ, ध्यान से सुनिए, रिसर्च हुआ। जब सारे बच्चे आपके इतने ही छोटे थे, तो आप बच्चों में से मोर देन 130%, कितना? मोर देन 130% जिनका आईक्यू है, ऐसे बच्चों की एक सोसाइटी बनाई गई। उसको नाम दिया गया मानस सोसाइटी। क्या नाम दिया? मानस सोसाइटी। उनमें जो बच्चे सिलेक्ट किए उनके आईक्यू कितना था? मोर देन 130%। यानी कितना आईक्यू, यानी कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए। उनकी एक सोसाइटी बनाई गई, हजारों बच्चे उसमें से आए और आफ्टर 20 इयर्स फिर से उनको फॉलो किया गया कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया। उनके जीवन में क्या बदलाव आया, वो अपने फील्ड में सक्सेस हुए या अनसक्सेस हुए या फेल हुए, इसकी जजमेंट किया गया। तो कंक्लूजन क्या आया पता है? इनकी आयु मोर देन, आईक्यू कितनी थी? मोर देन 130%। यानी हर एग्जाम में उनको आउट ऑफ 100 मिलते गए और इतना अच्छा आईक्यू है। और आफ्टर 20 इयर्स फिर से एक बार उनको चेक किया गया। आईक्यू तो बहुत अच्छा था, लेकिन सक्सेस रेट, अपने जीवन का जो सक्सेस रेट है वो देखा गया। तो मोर देन 70% बच्चे, बोलो क्या हो गए होंगे? किसने कहा फेल? हाथ ऊपर कीजिए, लंबा हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, दोनों ही सामने आइए, आप आइए। और एक हाथ ऊपर आया था इधर से, मानना सर, इन बच्चों की तारीफ करना चाहिए, करेक्ट आंसर दिया है। तो मेरा सवाल क्या था कि जिन बच्चों की आईक्यू मोर देन 130 थी,
ऐसे सारे बच्चों की सोसाइटी बनाई गई, उनका नाम मानस सोसाइटी रखा। आफ्टर 20 इयर्स उनकी हिस्ट्री और उनकी डेवलपमेंट देखी गई तो मोर देन 70% बच्चे फेल हुए। क्या लगता है आपको? इतना IQ होने के बाद भी मोर देन 70% बच्चों ने फेल होना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या? तो उसके लिए क्या ऐड करें जिसके कारण अपने जीवन में सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं? क्या ऐड करें जिसके कारण हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? बोलो, कौन जवाब देगा? क्या ऐड करना चाहिए? IQ तो है, हम स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, क्लासेस में जाते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं, तो IQ तो अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ क्या ऐड करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता हम प्राप्त करेंगे? बोलो बेटा। योगा एंड मेडिटेशन। ओके, जोरदार तालियां बजाइए। तो बेटी ने जवाब दिया है योगा और मेडिटेशन। तो योगा और मेडिटेशन से क्या होता है, ध्यान से सुनना है सबको। EQ डेवलप होता है। EQ, हमारे इमोशंस हेल्दी होने लगते हैं। जब इमोशंस हेल्दी होते हैं, इमोशन हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो हमारे लाइफ के डिसीजन हम एक्यूरेट ले सकते हैं। जब लाइफ के डिसीजन एक्यूरेट होते हैं तो सक्सेस अपने हाथ में आ जाता है। इसीलिए EQ इम्पॉर्टेंट है और EQ के साथ SQ भी इम्पॉर्टेंट है। SQ यानी स्पिरिचुअल हेल्थ। क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ। EQ यानी इमोशनल और IQ यानी इंटेलिजेंस। केवल इंटेलिजेंस होके नहीं चलेगा, इमोशन को भी हेल्दी बनाना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल साइंस जो है वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, तो ही हम ये जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। काफी समय से मैं आप सबके चेहरे पर हंसी देखना चाहती हूँ। वो क्या है? इमोशनल एनर्जी। क्या है? इमोशनल एनर्जी। जब तक इमोशनल एनर्जी क्रिएट नहीं होती तब तक इंटेलिजेंस काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, समझो एक नाम का पर्सन है, स्टूडेंट है, और उसकी पूरी अच्छी पढ़ाई हो गई है, सारा मैथ्स का पेपर है, एकदम पता है कि बहुत अच्छा है, मुझे अभी 100 में से 100 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन उसको सुबह सुबह किसी के ऊपर वो नाराज हो गया, घर में झगड़े हो गए, वो रोने लगा, मूड ऑफ हो गया। और ऐसे मूड ऑफ जो अवस्था है उसकी मन की, ऐसे ही वो एग्जाम देने गया। क्या लगता है वो 100% मार्क्स प्राप्त करेगा? नहीं। क्यों? एक्चुअली इंटेलिजेंस है ना, स्टडी भी अच्छी हो गई है ना, हरदम अच्छे मार्क्स मिलाता है ना, लेकिन इमोशन अगर हेल्दी नहीं है तो इंटेलिजेंस काम नहीं करता। समझो मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, और एक इमरजेंसी पेशेंट मेरे सामने आया है, लेकिन कुछ कारण से मैं उदास हूँ, तो मेरी जो सर्जरी करने की जो स्किल है वो इतनी 100% काम नहीं करेगी जितना मैं अदर टाइम करती हूँ। यानी हमारे पास जो इंटेलिजेंस है, हमारे पास जो स्किल है, उसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में 100% उतारना है तो उसका माध्यम है वो है इमोशंस, हेल्दी इमोशन। जब हम प्रसन्न होते हैं, जब प्रफुल्लित होते हैं, जो स्माइलिंग नेचर हमारा होता है, तो हमारे पास छोटा भी इंटेलिजेंस है तो भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी बीच में एक रिसर्च हो गया और रिसर्च के द्वारा ऐसा पाया गया है कि सफलता प्राप्त करनी है, सक्सेस प्राप्त करना है, तो 20% इंटेलिजेंस चल सकता है, लेकिन 80% इमोशन, हेल्दी इमोशंस चाहिए। क्या इक्वेशन हो गया? इंटेलिजेंस कितना चाहिए? केवल 20%, और इमोशन हेल्थ कितनी चाहिए? 80%। लेकिन अभी और भी एक सर्वे हो गया जो स्कूल से सर्वे किया गया 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड में, तो बच्चों में मैक्सिमम उदासी पाई गई, जो मैं आज भी देख रही हूँ।
जब मन प्रफुल्लित होता है, मन खुश होता है, स्माइलिंग फेस होता है, प्रसन्न चित्त होता है, तो कोई भी डिसीजन एक्यूरेट होता है और थोड़ा सा भी जो नॉलेज है, थोड़ा सा भी जो इंटेलिजेंस है, हम उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखना चाहिए कि हम कहाँ पर लैकिंग है ना? हमारे पास इमोशनल हेल्थ कम है, ये सच्चाई है। और यही इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर संचालित रोटरी पीस सेंटर और ब्रह्म कुमारीज इन दोनों संस्थान की तरफ से एक अभियान, एक सप्ताह का आयोजन हुआ है। और पूरे सप्ताह में अलग अलग स्कूल में, सीनियर सिटीजन में या अंध अपंग बच्चों के लिए सबको ये हम इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ का नॉलेज देकर उनको सक्सेस मिलाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो हम भी आज देखेंगे कि इमोशनल हेल्थ कैसी होती है और उसको हमें कैसा सुधारना है। दूसरी बात, जब इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है तो एक फॉर्मूला हम हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं और वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या है? हाँ, कोई भी हम काम करते हैं, भले स्टडी करना है या कोई एक्टिविटी करना है, वो तभी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा, हमारा माइंड प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सक्सेस रेट कम हो जाएगा, है ना? कि देखो, एक पल होता है, एक पल पर 3 काल काम करते हैं, पास्ट टेंस भी, प्रेजेंट टेंस भी और फ्यूचर टेंस भी। जो हम पहले एक्शन करते हैं, पहले कर्म करते हैं, उस आधार पर हमारा वर्तमान प्रेजेंट टेंस बनता है और प्रेजेंट टेंस में जो हम कर्म करते हैं उस आधार पर हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर बनता है। सही है? सही है। तो आज तक जो हो गया, जो पास हो गया है, क्या हम चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं? सुनाई नहीं दिया मुझे। नहीं चेंज कर सकते, बराबर है ना? नहीं चेंज कर सकते। अभी मुझे समझो लास्ट ईयर कुछ 60% मार्क मिले हैं लास्ट ईयर, तो क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन उस नॉलेज को और डेवलप करके प्रेजेंट टेंस में मैं अच्छी स्टडी कर सकती हूँ और प्रेजेंट के स्टडी पर मैं आज भी अच्छे मार्क्स पा सकती हूँ और उस आधार पर मेरा भविष्य भी बना सकती हूँ। तो सबसे पावरफुल कौन सा काल होता है? भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है या भविष्य काल होता है? वर्तमान है। प्रेजेंट टेंस सबसे पावरफुल है। क्यों? हाथ ऊपर करके जवाब देना। क्यों प्रेजेंट टेंस इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हम जो भी अभी प्रेजेंट में करते हैं वो हमारे फ्यूचर पे डिपेंड होता है। जो भी हम प्रेजेंट में करते हैं उसके द्वारा हमारा प्रेजेंट भी बनता है और प्रेजेंट ही फ्यूचर का फाउंडेशन है। तो 2 काल की जिम्मेवारी प्रेजेंट टेंस में आई, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। और हमारे हाथ में प्रेजेंट टेंस है, हमारे हाथ में भविष्य भी नहीं है, जो बीत गया वो भी नहीं है। बेटी के लिए तालियां बजाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हमें जीते आना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अपने जीवन में एप्लीकेशन करता आना चाहिए। जो कुछ भी हो गया पास्ट, उसका चिंतन नहीं करना और जो भी होने वाला है फ्यूचर, उसकी चिंता नहीं करना। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है ना, जो हो गया वो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होगा सो वो भी बहुत अच्छा। तो प्रेजेंट टेंस में जीना आना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट टेंस ही अपना फाउंडेशन है। लेकिन एक रिसर्च ऐसा बताता है कि जो इंसान का मन है वो 70% पिछले काल में जाता है, पास्ट टेंस में जाता है और 27% वो फ्यूचर में जाता है, 2% केवल प्रेजेंट में रहता है। तो हमने क्या कोशिश करना है अभी? क्या कोशिश करना है? 100% प्रेजेंट में
रहने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक सक्सेस मंत्र है। तो IQ के साथ EQ चाहिए, EQ के साथ SQ चाहिए, तो हम 100% सक्सेस की तरफ जाते हैं। वैसा ही प्रेजेंट टेंस में हमें रहना है, ये भी मंत्र को हम फॉलो करें तो सक्सेस हमारे करीब आ जाता है। अभी ये स्पिरिचुअल साइंस के बारे में एक 3-4 मिनट में बात करूंगी और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे मेडिटेशन का, ठीक है ना। तो ये जो स्पिरिचुअल साइंस है तो स्पिरिट के ऊपर डिपेंडेंट है। स्पिरिट क्या होता है पता है? स्पिरिट क्या होता है? हाँ बोलो। अच्छा आ चलिए, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर ये छोटी दीदी ने दिया है, जोरदार तालियां बजाइए। स्पिरिट यानी आत्मा, यानी एक शब्द हमें याद रखना है, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। सोल, सोल इज अ सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। जब योग शास्त्र का अभ्यास करते हैं तो कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहाँ है पता है आपको? आज्ञा चक्र कहाँ है? हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं, वो आज्ञा चक्र यहाँ होता है जहाँ पर हम कुमकुम लगाते, तिलक लगाते हैं, उस एरिया को आज्ञा चक्र कहा गया है। और वो सीट ऑफ सोल है, सीट ऑफ सोल है, यानी सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, यानी अपने जीवन का जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर अंतर मन की ज्योति अगर हम प्रज्वलित करते हैं तो अंधेरा भाग जाता है और हमारा जीवन उजाले की तरफ मुड़ने लगता है। तो हर एक के जीवन में कुछ न कुछ बातें होती ही हैं, लेकिन निगेटिव बातें होती हैं, तो उसको दूर करने के लिए, ऐसा ये अंधेरा दूर करने के लिए स्पिरिचुअल साइंस की जरूरत होती है। तो हमने देखा इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और प्रेजेंस में रहना, इसको हम फॉलो करेंगे, आज से ही फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। एक शिकागो में एक स्कूल है और उस स्कूल में एक रिसर्च हो गया कि 20 मिनट्स का मेडिटेशन रोज किया गया, 2 टाइम्स, 20 मिनट का मेडिटेशन 2 टाइम्स किया गया पूरे 1 साल। तो क्या पाया गया? तो बच्चों में जो चंचलता है वो पूरी ही नष्ट हो गई, सबका मन प्रफुल्लित और शांत हो गया, स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़ गया, रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट हो गई और बिहेवियर पैटर्न जो है उसमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट पाई गई। और जब शिकागो में ये रिसर्च हो गया, पब्लिश हो गया, और तब उस आधार पर पूरे ही करीब करीब आसपास के 5-6 देशों में ये रिटर्न जीआर हो गया कि हर स्कूल में क्या होना चाहिए? मेडिटेशन होना चाहिए। वैसे तो हमारे भारत देश की ही देन है ये मेडिटेशन, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको निगलेक्ट करते हैं। तो रोज हम 20 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा बदलाव अपने स्वयं के जीवन में और औरों के भी जीवन में, परिवार में पाएंगे। इसको ही मद्देनजर रखते हुए 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन एक ऑनलाइन लाइव मास मेडिटेशन होने जा रहा है। अपने अपने घरों में ही बैठकर मेडिटेशन करना है और वो मेडिटेशन की कमेंट्री यूट्यूब पर हम जारी करेंगे। उसको आपको केवल क्लिक करके उसको सुनते हुए मेडिटेशन करना है। उससे क्या होगा? उससे हमें हमारा मन स्वयं का शांत हो जाएगा और हम शांति के वाइब्रेशन सारे ग्लोब को, सारे विश्व को फैलाएंगे। तो वो जो हम दूसरों को शांति के वाइब्रेशन देंगे वो लौट के फिर हमारे पास आएंगे और हमारे पास शांति का, मधुर शांति का स्टॉक बढ़ते जाएगा। यानी एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन उस एक्टिविटी के जरिए हमें स्वयं को, सर्वों को भी और स्वयं को भी ये मधुर शांति की अनुभूति होने वाली है। इसमें ज्वाइन होने के लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, आदरणीय मानधना सर और सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स ने आपको लिंक भेजी जाएंगे, हम मानधना सर को लिंक भेजेंगे, वो आपको भेजेंगे। तो 21 जून को रात को ठीक 8 बजे मास मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस, उसका नाम है मास मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस। केवल यूट्यूब पर क्लिक करके
हमें ये मेडिटेशन करना है। 25 मिनट्स का मेडिटेशन होगा। अभी हम मेडिटेशन का एक छोटा सा अनुभव लेने वाले हैं, तो उसकी विधि मैं आपको समझाती हूँ। कभी भी कोई भी मेडिटेशन करना है तो स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट, बहुत बढ़िया, और हमारी बॉडी स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए हमें हाथ की ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आंखें हल्की सी बंद करना है। पहली मैं सूचना देने वाली हूँ कि पहले आपको स्वयं की जो श्वास है उसको ऑब्जर्व करना है। यानी जो भी श्वास आती जाती है उसको लंबा चौड़ा कुछ करना नहीं, केवल उसको ऑब्जर्व करना। उससे क्या होगा, हमारे थॉट्स जो है वो स्लो डाउन होते हैं और हमारा मन पॉजिटिव होने लगता है। उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि ललाट के मध्य भाग में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा विजुअलाइज करना है और उसकी रोशनी को महसूस करना है, शांति को भी महसूस करना है। और उसके बाद एक छोटा सा गीत लगेगा और वो गीतों के साथ, गीतों के भावनाओं के साथ हमें एक रूप होना है। तो जो मैं कमेंट्री देती हूँ उसको ध्यान से सुनना है और इस कमेंट्री के साथ में एक छोटा सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को कहा गया है AVF फॉर्मूला। A फॉर एटोसजेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन और F फॉर फीलिंग्स। यानी जो मैं कमेंट्री देती हूँ वो मन के मन में दोहराना है, उसका ही चित्र क्रिएट करना है और उसमें उसका ही एक्सपीरियंस हमें करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा शक्कर, शक्कर दिखाई दी आंखों के सामने और उसका स्वीटनेस भी फील हो गया। ऐसे इसको कहते हैं AVF फॉर्मूला। इस AVF फॉर्मूला के द्वारा न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, हमारे ब्रेन में पॉजिटिव चेंजेस होने लगते हैं और ये तीनों भी IQ, EQ और SQ तीनों ही बैलेंस होने लगते हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलो अभी मेडिटेशन करेंगे। सीधा होकर बैठना है, स्टेबल बॉडी, हार्ट की पोजीशन, ज्ञान मुद्रा, आंखें हल्की सी बंद, स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, हेड ऑफ फोरहेड, सेंटर ऑफ फोरहेड विजुअलाइज करें। एक अति दिव्य चमचमाता हुआ तेजो में सितारा। सितारा को महसूस करें जैसे आकाश में चांदनी होती है, चमचम करती है। ऐसे ही सेंटर ऑफ फोरहेड, जहाँ हम कुमकुम लगाते, तिलक लगाते, वहाँ पर एक अति दिव्य चमचमाता हुआ तेजो में सितारा। सितारा की रोशनी चारों ओर फैलते जा रही है। जैसे अंधेरे में कोई दिया जलाते हैं तो रोशनी पूरे घर को उजागर करती है। ऐसे ही यहाँ का दिव्य सितारा मेरे ब्रेन में उजागर हो रहा है। सब तरफ लाइट लाइट उजाला। मेरा ब्रेन IQ से, EQ से, SQ से भरपूर होते जा रहा है। आज मुझे नॉलेज मिला है स्पिरिचुअल साइंस का, इमोशनल साइंस का, इंटेलिजेंस साइंस का। ये तीनों ही बातें सदा ही बैलेंस होनी चाहिए। यही सक्सेस मंत्र। जब IQ, EQ, SQ बैलेंस होता है, हमारे जीवन के डिसीजन एक्यूरेट और
परफेक्ट होने लगते हैं। मन शांत, प्रफुल्लित, उत्साहित होने लगता है। शरीर हेल्दी, तंदुरुस्त, हमारे रिश्ते मधुर मधुर और मधुर बनते जाते हैं। फिर से एक बार फोकस करें, सेंटर ऑफ फोरहेड। मधुर शांति की किरणें यहाँ से निकलकर चारों ओर फैलते जा रही हैं, फैलते जा रही हैं। शांति सागर की ये किरणें मुझ सोल से निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। मेरे कंप्लीट स्कूल में मधुर शांति की लहरें लहरा रही हैं। मेरे क्लासमेट, मेरे स्कूलमेट, मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर्स, सभी को ये मधुर शांति प्राप्त होती जा रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मधुर शांति मेरा स्थायी भाव है, मेरी ओरिजिनलिटी है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से, फोरहेड से निकलकर सारे स्कूल में फैलते हुए मेरे घर में मेरे माता पिता, भाई बहन सबको प्राप्त हो रही हैं। ये शांति की किरणें मुझसे निकलकर सारे विश्व में फैलते जा रही हैं। शांति सागर की ये लहरें मैं महसूस कर रही हूँ। मेरा जीवन सक्सेसफुल है, मेरे चेहरे पर स्माइल है, मेरा ब्रेन प्रफुल्लित है, मेरा जीवन खुशनुमा है। शांति सागर की लहरें
बहुत अच्छा। ये 5 दिन का कोर्स है, हम भविष्य में कभी इसको ज़रूर करेंगे, जिसके रोज 1 घंटा 5 दिन हमने ये सारा नॉलेज और विधि सीख ली तो अपने जीवन में सक्सेस रेट बढ़ाने के हम निमित्त बन सकते हैं। आज बहुत ही अच्छी पैरिस स्कूल में ये राज योगा मेडिटेशन का इंट्रोडक्शन का यहाँ पर कोर्स हुआ है। मैं हमारे प्रेसिडेंट माधव जी देशमुख सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मानधना सर का सम्मान करें जोरदार तालियों से। I am Mrs. Radhika Rajendra Jeurkar, Principal of Sri Ramakrishna Education Foundation, St. Nandalal Dutt English Medium School and Mohanlal Ram Avatar Mandana Junior College. Science and Commerce faculty it is also there. On account of International Yoga Day, Rotary Club of Ahmednagar had organized a Raj Yoga meditation session in our SREF school. The speaker was Dr. Sudha Kankriya Madam. She has guided the students regarding IQ, EQ and SQ, how to increase this talents and all these things and the difference what it is there in that. So she has explained in detail to the students, and this will be followed in our school also. So I request all the parents and students to join on 21st of June at 8 p.m. on YouTube. Thank you so much.